یسوع مسیح کے القادر محیب قدوس پاک اور جلالی نام میں آپ سبوں کو میرا سلام. آپ سبوں پر خداوند یسوع مسیح کی سلامتی. آج جس موضوع کو ہم خدا کے کلام پاک میں سے دیکھنے، پڑھنے، سننے اور سمجھنے والے ہیں، میں امید کرتا ہوں یہ ہم سبوں کی زندگی کے پیٹرن کو، زندگی کے سناریو کو نکھارے گا، اور بالخصوص وہ لوگ جو ہوپلس ہیں، جو نا امید ہیں، جو مایوس ہیں، آج کا کلام ان کو ایک نئی امید دے گا. آج کا کلام ان کی زندگی میں، ان کی راہوں میں ان کی رہنمائی کرے گا کہ وہ بہتر چوائس کو حاصل کریں. آج میں عبرانیوں کے خط میں سے بیان کروں گا، اور یہ سارا جو سرمن ہوگا یہ عبرانیوں کے نام خط میں سے ہی ہوگا. آج اس دم توڑتی دنیا جہاں دکھ، آہ و نالہ، رنج، ماتم، گناہ اور بدی کی بڑھوتری ہو رہی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے زندہ امید خداوند یسوع مسیح ہے. مجھے اور آپ کو، میرے پیارے عزیزو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد قریب ہے. ہمیں خاص طور پر ان آخری ایام میں نہ صرف ایمان میں مضبوط رہنا ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے لیے صرف ایک ہی نام بہتر ہے، اور وہ نام یسوع مسیح ہے. آئیں اس سے پیشتر کے خدا کے کلام کا ہم مطالعہ کریں. میں عبرانیوں کے نام خط کا تعارف آپ لوگوں کے ساتھ کرواتا چلوں. عبرانیوں کے نام جو خط لکھا گیا، یہ مسیحی گروہوں کو لکھا گیا جن کو روز افز و مخالفت کا سامنا تھا اور خطرہ تھا کہ وہ مسیحی ایمان کو ترک کر دیں گے. اور میں بھی آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی آسائشات، دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھتے ہوئے مسیحی ایمان کو ہرگز ترک مت کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عبرانیوں کا خط ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے اندر ایمان کی مضبوطی کے لیے بنیادی طور پر یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع کا مکاشفہ ان پر ظاہر کرتا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے، جس نے دکھ سہنے کے ذریعے اپنے باپ کی حقیقی فرما برداری سیکھی. خدا کا بیٹا ہونے کے باعث یسوع مسیح پرانے عہد نامے کے نبیوں، فرشتوں اور خود موسیٰ سے بھی افضل تھا. بے شک وہ سب سے افضل تھا. خدا نے اعلان کر دیا کہ یسوع مسیح ازلی کاہن ہے، اور وہ پرانے عہد نامے کے کاہنوں سے افضل ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہ، ڈر اور موت سے نجات پاتا ہے. سردار کاہن کی حیثیت سے یسوع مسیح حقیقی نجات مہیا کرتا، جبکہ عبرانی مذہب کی رسومات اور جانوروں کی قربانیاں اس کا فقط عکس تھیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند مشہور افراد کی ایمان کی مثالیں دے کر خاص طور پر میں آپ سب لوگوں کو انکریج کروں گا عبرانیوں کا جو ہال چیپٹر ہے، ہال بک ہے، اس کو لازم پڑھیے، اور خاص کر عبرانیوں کا جو 11واں چیپٹر ہے اس کو، کیونکہ یہ ایک لمبی فہرست دیتا ہے ایمانداروں کی، اور 12ویں باب میں قارئین کو ابھارتا ہے کہ آخر تک وفادار رہیں، اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر مرکوز رکھیں، اور جو کچھ دکھ ایذا اور مصیبتیں آئیں انہیں صبر سے برداشت کریں۔ بے شک یہ کتاب جو ہے نصیحت اور انتباہ کی باتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو 7 چیزیں اس کتاب میں سے بتانا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص ان چیزوں سے روشناس نہیں ہے آج وہ اس سے روشناس ہو جائیں گے، نہ صرف روشناس ہوں گے بلکہ آج ان چیزوں سے وہ اس روشناسی کو حاصل کرنے کے بعد ایمان میں مضبوط رہیں گے اور مسیح سے لپٹے رہیں گے۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایک لفظ بہتر ہے، اور بہتر لفظ بائبل مقدس میں مسیحوں کے لیے ایک سنہرا لفظ ہے۔ اس لفظ کے ساتھ ساتھ مستقبل میں مسیحوں کے لیے سنہری وعدے منسلک ہیں جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج ہم عبرانیوں کے خط میں سے ہی سیکھیں گے، تو آئیں خدا کے کلام سے دیکھیں گے عبرانیوں کے خط میں سے 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت مبارکہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ پیارے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح بہتر امید ہے۔ یسوع مسیح کے ذریعہ سے آپ خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، اور خدا کے نزدیک جانے کے لیے اگر آپ کے لیے کوئی بہتر امید ہے تو صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے اس بات کا بیان کیا کہ وہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے، شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی تھی۔ وہ امید خدا کا کلمہ تجسم کلام خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہی امید اس وقت دم توڑتی دنیا کے لیے بہتر امید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیٹر چوائس، بیٹر اوپینین بنی نو انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی چیز جو ہم نے خدا کے کلام سے دیکھی بنی نو انسان کے لیے وہ بہتر امید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بہتر عہد ہے۔ عبرانیوں کے خط 7ویں باب کی 22ویں آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے۔ اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ یسوع مسیح نے اپنے لہو کے توسط سے یہ عہد باندھا۔ یہ عہد اس لیے بہتر عہد ہے کہ اس میں خدا اور باپ کے درمیانی جو بنا وہ میرا اور آپ کا منجید عالم ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، اور اسی لیے یہ بائبل مقدس کا بہتر عہد ہے جو یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے باندھا گیا۔ باپ کے ساتھ اس ملاقات کو جو عدم میں تنسیخ ہوئی دوبارہ بحال کرنے کے لیے
यीशु ने अपने लहू से अहद बांधा, इसलिए वो बाप का और हमारे दरमियान का दरमियानी कहलाया। खुदा और बाप से इंसान के मिलाप को का दरमियानी यीशु था, उसके बगैर ये मिलाप नामुमकिन था। और तीसरी चीज, बेहतर खिदमत। जब हम अब्रानियों के खत में से देखते हैं, उसके 8वें बाब में से और उसकी 6ठी आयत मुबारका में से, तो उसमें लिखा है, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। बेहतर का लफ्ज अब्रानियों के खत में बहुतात में मिलेगा। नो बेटर चॉइस देन जीसस। यीशु मसीह से बढ़कर बेहतर चॉइस इंसान के पास नहीं है। अगर हम यीशु मसीह की खिदमत पर गौर करें तो यीशु मसीह बेहतर खादम भी था। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। और खासकर खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार होने के नाते, खुदावन यीशु मसीह के खादम होने के नाते मेरे और आप पर भी ये फर्ज है कि हम भी उसको अपना रोल मॉडल बनाकर खिदमत करें। माजरत के साथ मैंने बहुत से ऐसे खुदाम को देखा है, अगर किसी इबादत में उनको अच्छे रुतबा में या किसी कुर्सी पर जगह ना दी जाए तो वो इबादत में बैठना पसंद नहीं करते, इबादत में शामिल होना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे और आपके लिए खुदावन यीशु मसीह ने नमूना पेश किया है कि उसकी खिदमत बेहतर खिदमत है। मुझे और आपको भी ऐसे ही खिदमत को फॉलो करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मेरी और आपकी मुखलसी किसी बकरे या बछड़े के लहू से नहीं हुई। किसी बकरे या बछड़े को मेरे और आपके लिए कुर्बान नहीं किया गया, बल्कि यीशु मसीह ने खुद को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। और यूं यीशु मसीह की जो कुर्बानी बनी नो इंसान के लिए उसने दी, वो बेहतर कुर्बानी है। अब्रानियों का खत उसका 9वां बाब, और जब हम उसकी 23वीं से 28वीं आयत को देखते हैं तो उसमें हम पर जाहिर होता है कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी उसने जो बनी नौ इंसान के लिए दी, वो दुनिया की बेहतर कुर्बानी थी। आए खुदा के कलाम से देखते हैं। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाए, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उसके हाथ के बनाए हुए मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदावंद के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे। जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बने आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को क्या कर दे, मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उनके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मेरे अजीजों,
मेरे और आपकी जो मुखलसी हुई है, ये यीशु मसीह ने अपने लहू से कीमत चुकाई है और उसने साबित किया है, जाहिर किया है उस दुनिया पर कि उसकी कुर्बानी दुनिया की सबसे अफजल और बेहतर कुर्बानी है। बगैर उस कुर्बानी के कोई भी इंसान खुदा बाप से मिलाप नहीं कर सकता। बगैर उस कुर्बानी के कोई भी इंसान खुदा बाप तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, यीशु मसीह में होते हुए हमेशा की जिंदगी हमारे लिए बेहतर मलकियत है। अब्रानियों के खत उसके 10वें बाब की 34वीं आयत मुबारका में लिखा है, मैं इस हवाला को पढ़ूंगा। चनाचा तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लौट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। ये बेहतर और दायमी मलकियत भी हमें यीशु मसीह के वसीला से हासिल होती है। और ये बेहतर और दायमी मलकियत इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, बेहतर मलकियत के साथ बेहतर मुल्क भी हमें यीशु मसीह के वसीला से हासिल होता है। और वो बेहतर मुल्क मुझे और आपको हासिल होगा इस जमीन पर नहीं, बल्कि खुदा के आसमान पर। अब्रानियों के खत के 11वें बाब की 16वीं आयत मुबारका को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। चनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया, और वो शहर खुदा के आसमान पर, वो मुल्क खुदा के आसमान पर। और उस मुल्क को जो हमारी बेहतर मलकियत है, हम यीशु मसीह के वसीला से हासिल कर सकते हैं। प्यारे अजीजों, इसके साथ साथ मैं आपको उभारूंगा, आपकी हौसला अफजाई करूंगा इस बात के लिए, ईमानदारों, इस दुनिया के हालात हमारे मुखालिफ ही क्यों ना हो, मसीही ईमानदारों, आप पर मुजालम कितने ही क्यों ना ढाए जा रहे हो, एज़ा रसानियां कितनी ही आप पर की जा रही हो, आप बेहतर क़यामत जो आपको यीशु मसीह के वसीला से हासिल होगी, आप उस क़यामत को जो बेहतर है आपके लिए, आप उस पर ट्रस्ट रखें। अब्रानियों 11 बाब और उसकी 34 आयत मुबारका में लिखा है, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैर कौमों की फौजों को भगा दिया। प्यारे अजीजों, ईमानदारों, मेरे और आपके लिए, हम अगर एज़ारसानियों से बच निकलते हैं, लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, परेशानियां हम पर आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन मजालम को सहते हुए अगर जिस्मानी तौर पर मर भी जाते हैं, तो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए पालूस रसूल के उन अल्फाजों को याद रखना है जो उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखते हुए कहे कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है।
और अब्रानियों का मुसन्नफ जिस आयत मुबारका को आपके लिए वर्द किया गया, इससे अगली आयत में बयान करता है, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क्यामत नसीब हो। बेहतर क्यामत यानी कि यीशु मसीह पर ईमान रखने से यीशु मसीह में जो मो जाते हैं, जो मर जाते हैं, यीशु मसीह में जो मर जाते हैं, यीशु मसीह में जो सो जाते हैं, उनको बेहतर क्यामत नसीब होगी। यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत के लिए आएगा तो वो जिंदा हो जाएंगे, यीशु मसीह के साथ बादशाही करेंगे, यीशु मसीह के साथ वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं और आपको उभारना चाहता हूं। 7 बातें हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह में आपके लिए बेहतर उम्मीद है। यीशु मसीह के वसीला से जो अहद खुदा बाप से बांधा गया, जो बर्रे के लहू से अहद बांधा गया, वो आपके लिए बेहतर अहद है। जो बेहतर खिदमत यीशु मसीह ने खादम बनकर की, वो बेहतर खिदमत है। और वो कुर्बानी जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए दी, वो बनिनो इंसान के लिए बेहतर कुर्बानी है। और मैं इस बात को बयान करता हूं कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। क्यों खुदावंद के हजूर मैं इस बात को बयान करता हूं, आप लोगों के साथ ईमानदारों इस बात का बयान करता हूं, क्योंकि आपके गुनाह, मेरे गुनाह इस कदर बढ़ चुके हैं, इस कदर बढ़ चुके थे कि हम उन गुनाहों के वसीला से हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते थे, अब्दियत में दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन ऐन वक्त पर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान किया जाए। और उसने बहैसियत खादम अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसने अपने आप को एक इस तौर से कुर्बान किया। और खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल उसके बारे में बयान करता है कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, वो बर्रा जिसने आदम में हवा और आदम की बरहनगी ढांकी, उसने मेरे और आपके गुनाहों को ढांकने के लिए, मुझे और आपको गुनाहों से मुखलसी देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो ऐसा सरदार काहिन है कि किसी बकरे या बछड़े का लहू नहीं लेकर नहीं, बल्कि अपना लहू लेकर पाक तरीन मकाम तक गया, मेरी और आपकी खलासी करवा दी। मेरे और आपके लिए बेहतर मलकियत यीशु मसीह पर ईमान रखने से मुझे और आपको आसमान पर मिलेगी। बेहतर मुल्क जहां मैं और आप आसमान पर जिंदगी गुजारेंगे, जिएंगे, वहां ना मौत होगी, ना आहो नाला होगा, ना कोई दुख होगी, ना कोई मुसीबत होगी और ना ही कोई तंगदस्ती होगी। और इसके साथ साथ ईमानदारों, हमें खास तौर पर मसीही ईमान में जिंदा रहते हुए इस बात पर यकीन रखना है कि बेहतर क्यामत भी हमें यीशु मसीह के वसीला से नसीब होगी। 7 चीजें मैं आपको दोबारा बताता चलूं। बेहतर उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह के जरिया से है। बेहतर अहद यीशु मसीह ने जो बांधा, उस अहद पर आप ट्रस्ट कीजिए, यीशु मसीह के लहू पर ट्रस्ट कीजिए। बेहतर खिदमत जो उसने सरंजाम दी, बेहतर कुर्बानी यीशु मसीह की थी, बेहतर मलकियत यीशु मसीह के वसीला से आप हासिल कर सकते हैं। बेहतर मुल्क में आप यीशु मसीह के वसीला से दाखिल हो सकते हैं और बेहतर क़यामत आपको यीशु मसीह के वसीला से मिल सकती है। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं इस मैसेज का इख्तिताम करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास अगर कोई और चॉइस नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई चॉइस है जो आपके लिए बेहतर उम्मीद है, जो आपके लिए जिसने बेहतर अहद बांधा, जिसने आपके लिए बेहतर कुर्बानी पेश की, जिसने बेहतर खिदमत आपके लिए की, जिसने बेहतर मलकियत को आपके लिए तैयार किया, जिसने बेहतर मुल्क को आपके लिए तैयार किया, जिसके वसीला से आप बेहतर क़यामत को हासिल कर सकते हैं, वो सिवाय यीशु मसीह के और कुछ नहीं है। यीशु मसीह पर ईमान लाके आप हमेशा की जिंदगी की उम्मीद रख सकते हैं।
यीशु मसीह के अहद को आप तस्लीम करके इस बात को जान सकते हैं, इस बात पर ईमान ला सकते हैं कि उसके लहू के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से मेरी और आपकी मुखलसी हुई। बेशक हम बेहतर मलकियत हासिल करेंगे, बेहतरीन मुल्क में रहेंगे, और इसके साथ साथ अगर हम जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले हम पर जिस्मानी मौत वकूअ पज़ीर भी हो जाए, तो हम हरगिज मत डरें, क्योंकि मौत एक जुदाई का नाम है। मौत नाम है मुंतकिल होने का, सेपरेशन का। और जब हम जिस्मानी मौत मर जाएंगे तो हम ये नहीं कि हम जिस्मानी मौत मरे और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। यीशु मसीह पर ईमान रखने से हमें बेहतर क़यामत नसीब होगी। आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या आपकी बेहतरीन चॉइस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर है या नहीं? आप बेहतर उस उम्मीद को, बेहतर क़यामत को, बेहतर कुर्बानी और बेहतर खिदमत को यीशु मसीह के वसीला से आप तक, या आपकी रोशना, आपकी जो मुलाकात है जो अदन में तनसीख हो चुकी थी, क्या उस मुलाकात को आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए दोबारा से बहाल चाहते हैं? अगर चाहते हैं, आपके यीशु मसीह में आपकी उम्मीद हो, आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए आप हर एक चीज में बेहतर से बेहतर चॉइस रखें। बेटर, जीसस इज ओनली बेटर चॉइस फॉर दिस होपलेस वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए कि यीशु मसीह ही हमारी जिंदगी का मरकज है। यीशु मसीह इज द सेंटर ऑफ ऑल यूनिवर्स, कि उसी के वसीला से हर चीज बनी, उसी के लिए बनी, और उसी में हर चीज कायम रहती है, और उसी में हम कायम रहते हैं। कि खुदा बाप ने अपने आप को हमारे अंदर रिप्लेस किया, जबकि वो हमारे दरमियान रहता था, जब बागे अदन में हमारे साथ आता था। फिर बाद में जब वो मतलब लोग उसके जलाल से डरते थे, तो फिर खुदावन ने कहा कि मैं मूसा की तरह एक नबी भेजूंगा, मूसा की तरह ही भेजूंगा, जिसका नाम होगा इमैनुअल, के खुदा हमारे साथ है। तो जैसे कि भाई ने कलाम किया कि यीशु मसीह ही मरकज है, यीशु मसीह इज द सेंटर ऑफ ऑल फॉर एवरीथिंग, कि उसके अलावा कोई चीज जो है ना वो कायम रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसी ने हर चीज, उसी के वसीला से बनी। मैंने पहले भी कहा, उसी के वसीला से बनी और उसी में कायम रहती है, और वही उसको कायम रखता है। और हर मसले का हल ही यीशु मसीह है। मसला है तो जो हल है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ना कि सिर्फ नजात दहिंदा है, ऑल इन ऑल, ही इज ऑल क्रिएटर फॉर ऑल इटर्निटी, फॉर एवरीथिंग, एंड कीपर एंड सस्टेनर फॉर एवरीथिंग। तो आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारे साथ ब्रदर इब्राहिम अरून हैं। मैं उनसे कहूंगी कि इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और इसके लिए बरकत चाहें, और हमने इसको सुन के इससे बरकत हासिल की, इसी तरह दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदा